Okay, so our next question is from semiconductor chapter, typical JEE main pattern, जिसमें वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो डायोड पे बेस्ड होता है. पिछले वाले अटेम्प्ट में उन्होंने ट्रांजिस्टर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे या फिर लॉजिक गेट्स. तो एज एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस तो सेमीकंडक्टर से मिलने थे. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0, देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 15, this is 0 and this is 22. So there will be a potential difference of 7 volt across 35 ohm. So there will be current of 1 upon 5 ampere. This is 1 upon 5 ampere current. देखो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 15. सो यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी 1/6 एम्पियर. तो 1/5 में से 1/6 जो है वो रेजिस्टेंस में से जा रहा है. तो जो बचा हुआ करंट है विच इज 1/5 माइनस 1/6, ये करंट डायोड में से जा रहा है. दिस करंट इज पासिंग थ्रू डायोड, एंड इफ यू वांट टू नो हाउ मच पावर डायोड इज कंज्यूमिंग, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस करंट बाय द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड. सो दिस इज द पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय द डायोड. इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखिए कितना आता है ये. तो ये हो गया आपका 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, विच कम्स आउट टू बी 1/2 watt. So this much power is consumed by the diode, and if you want to calculate 10 times of that power, the correct answer will be 5. इसका 10 गुना आपको चाहिए. क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा. The name of the chapter is semiconductor and the subtopic is Zener diode. Okay, so this was question number 4. Now coming to next question, question number 5. This question is from simple harmonic motion. Again a very simple question. Initially the pendulum was attached to lift. The topic is SHM. Category is easy. So initially the time period was 2 pi under root L upon G. Now the pendulum is placed in a lift moving with an acceleration g/2. So if pendulum is placed here, then with respect to the lift, the effective gravitational force will be mg plus ma, where a is g/2. So the g effective comes out to be 3g divided by 2. So in this situation, if you displace pendulum by an angle theta, and if you try to calculate the restoring torque, and if you try to calculate the new time period, the new time period will be 2 pi under root L upon G effective, which is 3g by 2. So here you can clearly see that this T dash is equal to square root of 2 divided by 3 times T. So the correct answer is 1. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये कैसे आया तो मैं इसको और समझा सकता हूँ आपको. देखिए जब आप उसको थीटा से डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स आता है उस फोर्स के 2 टुकड़े होंगे. एक इधर वाला होगा, दैट इज m टाइम्स g इफेक्टिव sin theta, and torque due to that force is into L, and this is my restoring torque. And that torque should be equal to I, which is ml square multiplied by theta double dot. If theta is very small, then sin theta will be approximately theta, and you can prove that theta double dot will be equal to g effective divided by L into theta. This is my restoring angular acceleration. This is my restoring torque. So theta double dot is proportional to theta, which indicates that this is SHM, angular SHM, and this is the proof of this formula. And you can directly apply this formula. Whenever you find this type of question, you can just write G effective in place of G. Okay? तो जैसा मैंने बताया आसान क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था, SHM का क्वेश्चन था. Our next question is from friction chapter. Again, this is easy question. जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है. आपको यहाँ पर एक फोर्स दे रखा है और आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल there are looking at the option, we can conclude that the block is not flying at all.
It is not losing the contact, which means that block is going to slide on the ground. So F cos theta is the pulling force and friction is the stopping force. So if you want to calculate acceleration, it will be F cos theta minus mu times normal divided by m. And normal can be calculated very easily. Normal is in upward direction. F sin theta is also in upward direction. So if you want to calculate normal, it will be equal to mg minus f sin theta, and you have to replace this value here because normal plus f sin theta is mg. So normal is mg minus f sin theta and the correct answer is 1. छोटा सा question, scoring. Next question is question number 7. This is again a theoretical question. As you know that kinetic energy maximum in case of a photoelectric effect is given by h nu minus phi. And if you want to stop the effect, actually stop जो effect है वो stop नहीं होता. जो इलेक्ट्रॉन इमीटर से निकलता है वो कलेक्टर तक पहुंच के लौटाना होता है. तो आपने इमीटर से इलेक्ट्रॉन निकाला, वो कलेक्टर तक आया, लेकिन उसको लौटाना है. तो वह आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो करनी है. तो हाउ मच हाई पोटेंशियल, कितना हाई पोटेंशियल इमीटर को कलेक्टर के रेस्पेक्ट में रखना होता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट है वो जीरो हो जाए. तो यू कैन डायरेक्टली कंपेयर के मैक्स विद ईवीएस. यू कैन इजीली अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, और वहां से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. और मेरा यकीन है कि जिस बच्चे ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को जरूर जानता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वही डिसाइड करती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा. सो क्वेश्चन इज ईजी और मुझे पूरी उम्मीद है लगभग सब बच्चों ने इसको किया होगा. इस क्वेश्चन को मैं एक्चुअली ऑलरेडी पहले शूट कर चुका था, तो उस समय बाई चांस रिकॉर्ड नहीं हुआ. सो आई एम अगेन राइटिंग दिस सॉल्यूशन ताकि आप सब बच्चों को समझ में आ जाए. तो मैं दो सॉल्यूशन इसके बताऊंगा आपको. एक उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूला पता होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय T1 बाय K1. व्हाट इज T1 बाय K1? T1 का मतलब है कितनी थिकनेस में K1 मीडियम है. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 3D/4 थिकनेस में K मीडियम है, और कितनी थिकनेस में एयर है, तो D/4 में जो है वो एयर है. सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेनेवर द डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू कैपेसिटी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ऐसे लिख सकते हो. ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाले बच्चों की बात हो गई. जिन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पसंद वो कैपेसिटेंस की फंडामेंटल डेफिनेशन पे जा सकते हैं. इट इज Q डिवाइडेड बाय potential difference between plus and potential difference between plus and minus plate. So if there is a charge Q here and minus Q charge here, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो होगा E नोट डिवाइड बाय K, और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E नोट, एंड E नोट इज Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नोट. सो Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नोट, ये मेरा E नोट है, डिवाइड बाय K करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का. एंड इफ आई वांट टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 3D/4 प्लस यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नोट इनटू D/4. D से D कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया. आप फिर से सॉल्व करेंगे तो जो अल्टरनेट मेथड है उससे भी वही आंसर निकलेगा जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला था. अलोंग विद दिस देयर इज वन मोर मेथड. कुछ बच्चे इन दोनों को सीधा सीरीज में मान लेते हैं. यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट मान लेते हैं थिन, जिसके इधर वाला हिस्सा इसके साथ कैपेसिटर बनाता है, उधर वाला इसके साथ बनाता है, एंड दे डायरेक्टली राइट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. उससे भी यही आंसर आएगा. कैपेसिटर का क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी का रखा है इसलिए क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, अदरवाइज देखा जाए तो क्वेश्चन वैसे इजी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सॉल्यूशन एक बार बना चुका हूं, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई, इसलिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूं. वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, देन फॉर दिस मॉलिक्यूल, फॉर दिस पार्टिकल नॉट मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस इज L/√2. For this particle it is L√2, and for third particle it is L/√2 again. So the total moment of inertia will be m into L square divided by 2 into 2. ये इन दोनों का हो गया प्लस m into 2L square, and the correct answer is 3mL square. Easy क्वेश्चन है ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का बहुत आसान क्वेश्चन.
पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इससे जीवन में आसान कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वी हैव 3 डिफरेंट गैसेस। इसका आधा मोल है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। तो टोटल जो मोल्स हैं इन टोटल वो आ जाते हैं अपने पास 2.5। According to the law given by Dalton, if you have n number of gases filled in a box, in a container, then the net pressure is the summation of their partial pressures. So it is P1 plus P2 plus P3 and so on if you have more gases. Today we have 3 gases, so it is N1 plus N2 plus N3 into RT by V. Because all of them are in equilibrium, all of them are having same temperature, all of them are placed in a single container, so volume will be same for all, and the correct answer for this question will be 2.5 RT by V, which is there in option 4. तो आसान क्वेश्चन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। तो देखो बच्चों, अभी तक जो 10 क्वेश्चन मैंने देखे, अभी तक मोर और लेस सारे इजी कैटेगरी के हैं, है ना। और इससे एक आइडिया लग रहा है कि ये जो पेपर है आज का पहली शिफ्ट का, दिस पेपर इज इन लाइन विद द टेस्ट पेपर्स ऑफ फेब्रुअरी अटेम्प्ट। ओके, सो आई होप जो बच्चे कल और परसों एग्जाम देने वाले होंगे वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अलाइन करेंगे। पेपर कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से, जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करना है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद इंटीजर्स। बहुत आसान क्वेश्चंस मिलते हैं इंटीजर्स में, तो दैट इज योर चॉइस। अगर आप इंटीजर से स्टार्ट करते हो तो एक किक मिलता है बड़ा वाला, 4-5 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, है ना। सो दैट इज ऑल। अभी मैं 11 से लेकर के बाकी क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी लेकर आपके सामने आता हूँ।